عام طور پر جب تاریخ اور پرانے زمانوں کی بات ہوتی ہے نا تو ذہن میں بس ایک عجائب گھر کا تصور ابھرتا ہے، ہر چیز شیشے کے پیچھے احتیاط سے رکھی ہوئی، بالکل صاف ستھری۔ لیکن آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اس شیشے کو توڑنے والے ہیں۔ ہاں، اور یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے، کیونکہ جب انسان ان بند کمروں اور عجائب گھروں سے باہر نکل کر فطرت میں قدم رکھتا ہے تو تاریخ پھر محض چند بے جان کتابوں تک محدود نہیں رہتی، وہ باقاعدہ پہاڑوں، غاروں اور دریاؤں میں سانس لیتے ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آج ہم جن 18 مقامات پر بات کرنے والے ہیں وہ صرف سیاحتی مناظر نہیں ہیں، بلکہ زمین کے ارتقاء اور انسانی بقا کی شاندار داستانیں ہیں۔ بالکل، اور آج ہم ان تمام ذرائع اور معلومات کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں تاکہ ایشیا اور افریقہ کے ان حیرت انگیز قدرتی اور تاریخی مقامات کا سفر کر سکیں۔ اور اس سفر کی شروعات ہم سری لنکا کے بالکل مرکز سے کرتے ہیں۔ وہاں ایک مقام ہے پنڈورنگالا راک۔ اچھا، پنڈورنگالا راک، یہ بہت خاص جگہ ہے۔ ہاں، سطح سمندر سے کوئی 3937 فٹ بلند، یہ چٹان تقریباً 2500 سال پرانی ہے۔ جب طلوع یا غروب آفتاب کے وقت سورج کی کرنیں اس چٹان سے ٹکراتی ہیں نا تو ایک عجیب سا طلسماتی منظر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حدود میں ایک بہت بڑا بدھا کا مجسمہ چھپا ہوا ہے، جو صرف اسی وقت نظر آتا ہے جب کوئی انسان اس جگہ کی گہرائی میں جا کر اسے ڈھونڈے۔ اور اس مجسمے کا چھپا ہونا ہی دراصل اس کی سب سے بڑی کشش ہے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہ سمجھنے دیں، اگر قدیم انسان نے اتنی محنت کر کے پتھر تراش کر ایک اتنا بڑا اور شاندار مجسمہ بنایا ہی تھا تو اسے سب کی نظروں سے اوجھل رکھنے کی چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ عمارتیں اور مجسمے تو بنائی اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھیں۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن قدیم روحانیت کا جو نظریہ تھا نا وہ آج کے دور سے بالکل مختلف تھا۔ یہ چھپے ہوئے مجسمے اور بلندی پر موجود مقامات دراصل یہ پیغام دیتے ہیں کہ روحانیت اور علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بازار میں آسانی سے مل جائے۔ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، اسے حاصل کرنے کے لیے ایک کٹھن راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اسی علاقے میں 3 صدی قبل مسیح کی کولوڈیا پوکونا موناسٹری بھی موجود ہے۔ اگر اس خانقاہ کی تعمیراتی مہارت پر غور کیا جائے تو واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس دور میں کئی ٹن وزنی پتھروں کی سلیبیں استعمال کی گئیں تاکہ ایک مضبوط ڈھانچہ کھڑا کیا جا سکے، اور یہ سب اتنی بلندی پر کیا گیا۔ بغیر کسی جدید مشینری کے کئی ٹن وزنی پتھروں کو بلندی پر لے جانا یہ کیسے ممکن ہوا ہوگا؟ یہی تو انسانی ارادے کی طاقت ہے۔ انہوں نے شاید لکڑی کے رولرز اور ہاتھیوں کا استعمال کیا ہوگا۔ لیکن اس مقام کی ایک اور حیرت انگیز بات، وہاں موجود 30 مچھلیوں کے تالاب ہیں۔ اب حیرت ہوتی ہے کہ ایک پہاڑ پر مچھلیوں کے تالاب کیوں؟ ہاں واقعی، پہاڑ پر تالاب کا کیا کام؟ دراصل وہ تالاب نہ صرف بارش کا پانی جمع کرنے کا ایک بہترین نظام تھے، بلکہ وہاں کے بھکشوؤں یعنی منکس کی خوراک کا ایک مستقل ذریعہ بھی تھے۔ یعنی انہوں نے اس تنہائی میں بھی اپنی بقا کا ایک مکمل اور پائیدار نظام بنا لیا تھا۔ ارے واہ، یہ تو واقعی انجینئرنگ کا کمال ہے۔ اور اگر ہم اسی قدیم دور میں تھوڑا اور آگے بڑھیں تو 29 قبل مسیح کا الوہارا راک کیو ٹیمپل سامنے آتا ہے۔ یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں پہلی بار بدھ مت کے صحیفوں کو پالی زبان میں محفوظ کیا گیا۔ ذرا سوچیں، 300 فٹ گہرے غاروں کے اندر بدھا کی زندگی کو درساتے ہوئے 300 فن پارے اور دیواروں پر بنی تصاویر۔ اور غاروں کا انتخاب نہ محض اتفاق نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر کیا وجہ تھی؟ اگر ہم اسے سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو غار قدرتی ریفریجریٹر اور والٹ کا کام کرتے ہیں۔ پام کے پتوں پر لکھی گئی ان قدیم تحریروں کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے ایک خاص اور متوازن درجہ حرارت کی ضرورت تھی، جو ان غاروں کے اندر قدرتی طور پر موجود رہتا ہے۔ یہ نقطہ بہت زبردست ہے کہ غاروں نے ایک قدرتی تجوری کا کام کیا۔ ہاں، یعنی غار انسان کو نہ صرف دنیاوی شور و غل اور حملہ آوروں سے بچاتے ہیں، بلکہ علم کو صدیوں تک محفوظ رکھنے کا بہترین ماحول بھی فراہم کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جنگوں کے دوران یہ غار بھکشوؤں کے لیے پناہ گاہ کا کام بھی دیتے رہے ہیں۔ کمال ہے۔ خیر، اب اگر ہم ان پرسکون اور خاموش غاروں سے نکل کر پانی کی زبردست طاقت اور شور کی طرف آئیں تو سری لنکا میں ہی روانہ فالز موجود ہے۔
82 फुट बुलंद ये झरना कदीम हिंदुस्तानी दास्तान रामायण और बादशाह रावणा से जुड़ा हुआ है। बारिश के मौसम में यहाँ हर मिनट 1000 गैलन पानी गिरता है। 1000 गैलन? ये बहुत ज्यादा पानी है। बिल्कुल, और इस झरने के पीछे भी वो कदीम गार मौजूद हैं जो कभी मकामी लोगों की पनागाह हुआ करते थे। यानी पानी की इस देवबहकल ताकत के पीछे एक महफूज पनागाह छुपी हुई है। पानी की ताकत एक ऐसा मजहर है जो इंसान को बेवक्त खौफजदा भी करता है और जिंदगी भी बख्शता है। श्रीलंका के मेस्कुलविया दरिया पर वाक़े लक्षापाना फॉल्स इसकी एक और शानदार मिसाल है, जिसकी बुलंदी कोई 1261 फुट है। 1261 फुट। और ये मकाम सिर्फ देखने की हद तक खूबसूरत नहीं है, बल्कि ये मकामी ज़राअत के लिए पानी की फराहमी का एक बहुत बड़ा और अहम निज़ाम भी है। लेकिन लक्षापाना फॉल्स का जो शोर है ना, वो तो दिमाग को हिला देता है। इस पानी की आवाज़ 90 डेसिबल तक पहुंच जाती है। अरे वाह, 90 डेसिबल? हाँ, इसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाने के लिए यूँ समझें जैसे कान के बिल्कुल पास एक बहुत बड़ा फुल स्पीड पर शोर मचाता हुआ ब्लेंडर चल रहा हो, इतनी ऊंची आवाज़। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस इलाके में सालाना 200 इंच बारिश होती है, जिसकी वजह से पानी का होजम नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ जाता है। और जब पानी इतनी बुलंदी और इतने हुजूम के साथ गिरता है तो वो अपने इर्द गिर्द के पूरे माहौल को बदल कर रख देता है। अगर हम पानी की इस ताकत को अफ्रीका में देखें तो तंजानिया में किलिमंजारो के करीब माटेरोनी वाटरफॉल मौजूद है। ये झरना 262 फुट ऊंचा है, यानी तकरीबन एक 26 मंजिला इमारत के बराबर। यहाँ से हर सेकंड 1200 गैलन पानी गिरता है। हर सेकंड? बिल्कुल, ये इतना पानी है कि एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल सिर्फ 40 मिनट में पूरा भर सकता है। और इस पानी का दर्जा हरारत 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट? इसका मतलब है कि ये पानी तो बर्फ जैसा ठंडा होता होगा। हाँ, ये जिस्म में एकदम से सनसनी दौड़ा देता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस आबशार तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके लिए 2.5 मील का इंतहाई मुश्किल और फिसलन भरा सफ़र तय करना पड़ता है। और रास्ते में एक बहुत अनोखा चैलेंज मुंतज़िर होता है, वो है बालों वाले कीड़े। बालों वाले कीड़े? ये कैसा चैलेंज है? अगर कोई इंसान गलती से भी उन्हें छू ले तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने मुसलसल और बेशुमार सुइयां चुभो दी हों। बाप रे, ये कीड़े तो दरअसल फितरत के मुहाफिज लगते हैं। लेकिन हयातियाती तौर पर देखा जाए तो इन कीड़ों में ये सुइयां जैसी चुभन क्यों होती है? क्या ये सिर्फ इर्तिकाई अमल का नतीजा है? बिल्कुल, ये उनका दिफाई निज़ाम या डिफेंस मैकेनिज्म है। इन कीड़ों के बालों में एक खास किस्म का जहर होता है जो उन्हें परिंदों और दूसरे शिकारियों से बचाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये इर्तिकाई अमल इस पूरे जंगल की हिफाजत भी कर रहा है। यानी फितरत अपनी खूबसूरती को बचाने के लिए पहरेदार भी बिठाती है। जी, ये उस बात का सबूत है कि फितरत अपनी सबसे नायाब खूबसूरती के गिर्द हमेशा एक हिफाजती हिसार खड़ा रखती है। खूबसूरती तक पहुंचने का रास्ता कभी सीधा और सहल नहीं होता। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, अब इन खतरनाक रास्तों से निकलकर जरा समंदर के पुरसुकून और खुले पानियों का रुख करते हैं। तंजानिया में ही ज़ांज़िबार के साहिल से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर एक छोटा सा जजीरा है, मिनिम्बा आइलैंड। इसका रकबा महज 0.5 मरबा किलोमीटर है, लेकिन ये एक बिल्कुल अलग और हैरत अंगीज दुनिया है। छोटा सा जजीरा, लेकिन खासियतें बहुत बड़ी। हाँ, यहाँ समंदर का पानी इतना शफाफ है कि 100 फुट गहराई तक सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आता है। यहाँ 200 मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ पाई जाती हैं। और इस जजीरे की सबसे खास बात यह है कि वहाँ बांस से बने हुए सिर्फ 12 लग्जरी बंगले हैं। उन बंगलों की तामीर में बांस का इस्तेमाल बहुत अहम है। बांस एक ऐसा मवाद है जो न सिर्फ मकामी माहौल से मुताबिकत रखता है, बल्कि ये माहौलियाती तौर पर पायदार यानी सस्टेनेबल भी है। बिल्कुल, ताकि माहौल को नुकसान ना पहुंचे। जी, ये इस बात को यकीनी बनाता है कि सियाहत की वजह से इस छोटे से जजीरे का कुदरती तवाज़ुन खराब ना हो। ये एक जबरदस्त सोच है। और अगर हम समुद्री खूबसूरती की बात कर ही रहे हैं तो फिलिपाइन का जिक्र करना तो लाजमी है। वहाँ का नागपान बीच 3.5 मील लंबा साहिल है, जहाँ पानी का दर्जा हरारत साल भर 77 से 88 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान रहता है। ये दर्जा हरारत तो तैराकी के लिए बहुत मिसाली है।
हाँ, और जो चीज़ इसे खास बनाती है वो ये है कि एक वक्त था जब ये सयाहत की नज़रों से मुकम्मल तौर पर ओझल एक खुफिया खजाना था, लेकिन आज ये सालाना 1 लाख सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। और फिलिपाइन में ही एक और इंतहाई हैरान अंगेज मकाम अपू आइलैंड भी है। ये जजीरा सिर्फ 74 एकड़ पर मुहित है, लेकिन यहाँ की हयातियाती तनव्वो या बायोडाइवर्सिटी लाजवाब है। सुना है वहाँ समुद्री हयात बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, यहाँ मछलियों की 400 और मोंगे यानी कोरल की 300 अक़साम मौजूद हैं, और वहाँ का काले रेत का साहिल, जिसे ब्लैक सैंड बीच कहते हैं, वो एक पुरस्रार सी कशिश रखता है। तो ये काली रेत दरअसल आतिशफशानी लावे के टूटने से बनती है, ठीक है ना? जब लावा समंदर के ठंडे पानी से टकराता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर रेत में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल दुरुस्त। ये आर्जियाती अमल लाखों सालों पर मुहित होता है, लेकिन आपुआई आइलैंड में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन है वो ये है कि सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं है, बल्कि समंदरी हयात की बहाली की साइंसी तहकीक का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। यानी वहाँ रिसर्च होती है। हाँ, लोग अक्सर समझते हैं कि कोरल या मूंगा शायद कोई रंग बरंगा पत्थर है, लेकिन दरअसल कोरल जिंदा जानवर होते हैं जो आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा माहौलियाती निज़ाम बनाते हैं, जिस पर समंदर की हज़ारों मछलियाँ इन्हिसार करती हैं। जब समंदरी माहौलियात को खतरा लाहक होता है तो साइंसदान यहाँ आकर तहकीक करते हैं कि इन तबाहशुदा कोरल रीफ्स को दोबारा कैसे जिंदा किया जा सकता है। यानी वो एक तरह से समंदर के अस्पताल का काम कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, अब जरा समंदर की गहराइयों से निकलकर जमीन के अंदरूनी हिस्सों की तरफ चलते हैं, सीधा चीन की तरफ। ज़ीजिन गार दुनिया के चंद सबसे बड़े गारों में से एक है। ये 20 लाख साल पुराना, 15,000 फुट तवील और 1412 फुट गहरा है। 20 लाख साल पुराना, ये तो तसव्वुर से भी बाहर है। हाँ ना, और उसके अंदर 23 फुट ऊंचे स्टैलेग्माइट्स मौजूद हैं। अब सुनने वालों की दिलचस्पी के लिए बता दूं कि स्टैलेग्माइट्स वो पत्थर के मीनार होते हैं जो गार की जमीन से ऊपर की छत की तरफ उठते हैं, और इनके बनने का अमल इंतहाई सुस्त और हैरान कुन है। जब गार की छत से पानी के कतरे गिरते हैं तो उनमें मौजूद मादनियात यानी मिनरल्स जमीन पर जमा होना शुरू हो जाते हैं, कतरा कतरा करके। बिल्कुल, और हजारों बल्कि लाखों सालों तक जब ये कतरे एक ही जगह गिरते रहते हैं तो वो मादनियात जमकर एक मीनार की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कितना सबर आजमा अमल है ये फितरत का। और सबसे हैरान अंगेज चीज इस गार के अंदर बहने वाला 1600 फुट लंबा ज़ीरे ज़मीन दरिया है, जो सूरज की रोशनी के बगैर ही अपना एक बिल्कुल अलग माहौलियाती निज़ाम चलाता है। लेकिन रुकें, इस गार की गहराइयों के बिल्कुल बरक्स चीन के इसी इलाके में आसमान को छूती हुई लीबू जोंगजोंग सैनिक एरिया की चोटियां भी मौजूद हैं। जी हाँ, और ये चोटियां चूने के पत्थर यानी कार्स्ट से बनी हैं। अब कार्स्ट एक ऐसा अर्जियाती निज़ाम है जहाँ पानी आहिस्ता आहिस्ता चूने के पत्थर को काटकर और पिघलाकर इंतहाई अजीबो गरीब और नुकीली चोटियों में बदल देता है। ये तो कोई 3300 फुट बुलंद चोटियां हैं, है ना? जी बिल्कुल। और इस 1000 एकड़ पर फैली वादी में 600 नायाब पौधों की अक़साम पाई जाती हैं, और यहाँ चीन के सबसे तवील सस्पेंशन पुल भी मौजूद हैं। ये तजाद देखकर तो दिमाग हैरान रह जाता है। मतलब एक तरफ ज़मीन के 1400 फुट नीचे एक मुकम्मल तौर पर अंधेरा ज़ेरे ज़मीन दरिया अपना निज़ाम चला रहा है, और दूसरी तरफ 3300 फुट की बुलंदी पर एक बिल्कुल ही अलग और सरसब्ज दुनिया आबाद है। ये ज़मीन के तनव्वो का, डाइवर्सिटी का एक कमाल का सबूत है। और इसी तनव्वो और मौसमों की शिद्दत को समझने के लिए हमें मंगोलिया के खाना बदोश मैदानों का रुख करना चाहिए। ओरखुन वैली, जो कि 1.8 मिलियन एकड़ पर फैली एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ का मौसम इंतहाई बेरहम है। मैंने सुना है वहाँ सर्दी बहुत शदीद होती है। हाँ, गर्मियों में दर्जा हरारत 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सर्दियों में अचानक -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। इसके बावजूद ये इलाका 7वीं से 9वीं सदी के आसार का गढ़ है। यहाँ तुर्क ज़बान के कदीम तरीन तहरीरी सबूत, जिन्हें ओरखुन की तहरीरें कहा जाता है, और खाना बदोश हुक्मरानों के पुरस्रार मकबरे मौजूद हैं। -40 डिग्री, मतलब ऐसी शदीद सर्दी में जब खून तक जमने लगता है, इंसान ने वहाँ न सिर्फ अपनी बका यकीनी बनाई बल्कि बाकायदा तहजीबें भी खड़ी की। और इसी सहराए गोभी के इलाके में उंगेन गोल दरिया भी वाक़ है। उंगेन गोल दरिया, ये 200 किलोमीटर लंबा दरिया आबी हयात के लिए किसी नेमत से कम नहीं।
क्योंकि इसके पानी का pH लेवल 7.2 से 8.5 के दरमियान है। और इस pH लेवल का 7.2 से 8.5 के दरमियान होना बहुत मायने रखता है। वो कैसे? क्योंकि ये पानी हल्का सा एल्कलाइन होता है। सहराई इलाकों में अक्सर मादनियात की वजह से पानी जहरीला या बहुत ज़्यादा तेज़ाबी हो सकता है, लेकिन ये हल्का एल्कलाइन पानी आबी हयात को जिंदा रखने में मदद देता है। यही वजह है कि माजी में ये दरिया एक इंतहाई अहम तिजारती रास्ता था और आज भी वहाँ बुद्ध मत के एक अजीम मंदिर के खंडरात मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि पानी चाहे मंगोलिया का हो या श्रीलंका का, उसने तहजीबों को पनपने में कलीदी किरदार अदा किया। और इसी बात की एक और बेहतरीन मिसाल वियतनाम का नोह कोई दरिया है। अच्छा, नोह कोई दरिया का रंग तो बहुत ही खास है। बिल्कुल, चूने के पत्थरों के कटाव से बनने वाला ये दरिया बिल्कुल जीट पत्थर जैसा सब्ज रंग रखता है। इस दरिया की सतह में मौसम के लिहाज से 60 से 80 फीट तक का जबरदस्त उतार चढ़ाव आता है और इसके आसपास 47 ऐसे जानवरों की अक़साम पाई जाती हैं जिन्हें मधुमियत का खतरा है। और वियतनाम में ना दरियाओं के साथ साथ पहाड़ों की बुलंदी पर इंसानी मेहनत की ऐसी कहानियां हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं, जैसे कि मा पे लैंग पास। इसे शुमाल मशरिक की छत कहा जाता है। मैंने पढ़ा था कि ये वियतनाम की खतरनाक तरीन सड़कों में से एक है। बिल्कुल, 5253 फुट की बुलंदी पर वाक़े ये वियतनाम की सबसे खतरनाक सड़क है। इस रास्ते को खुशी की सड़क या हैप्पीनेस रोड कहा जाता है, जिसे 1950 से 1975 के दरमियान जंगी कैदियों ने अपने हाथों से बगैर किसी भारी मशीनरी के तामीर किया। इसमें 1 मील लंबी सुरंग भी है। जंगी कैदियों ने 25 साल तक एक सड़क बनाई। ये सोचकर ही खौफ आता है कि वहाँ काम करना कितना खतरनाक होगा। चूने के पत्थर के पहाड़ वैसे ही बहुत भुरभुरे और कमज़ोर होते हैं। वहाँ से ज़रा सा भी पाँव फिसलने का मतलब सीधा हज़ारों फीट नीचे खाई में गिरना था। आज सालाना 2 लाख सयाह वहाँ जाते हैं, लेकिन वो इस सड़क के पीछे मौजूद इंसानी खून पसीने की कहानी शायद पूरी तरह नहीं जानते। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी बुलंदी पर डोंग वेन प्लेटो भी मौजूद है। 4266 फुट की बुलंदी पर वाक़े 1400 मुरब्बा मील पर फैला ये इलाका भी एक यूनेस्को जियो पार्क है। वहाँ के फूल बहुत मशहूर हैं। हाँ, यहाँ सर्द मौसम में खिलने वाले बकवीट के फूल पूरी वादी को एक गुलाबी रंग में रंग देते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस दुश्वार गुजार इलाके में 17 मुख्तलिफ एथनिक अक़लियतें यानी एथनिक ग्रुप्स एक साथ रहते हैं। इसकी वजह यही है कि पहाड़ों की तन्हाई ने उन्हें बैरूनी हमलों और सकाफती मिलावट से महफूज रखा, जिससे उनकी अलग ज़बानें और रिवायात आज तक जिंदा हैं। क्या बात है! तन्हाई और बका की क्या शानदार मिसाल है। और इंसानी बका की बात हो तो मुंगकांग चाय के चावल के खेतों का जिक्र करना जरूरी है। 13वीं सदी में हमुंग कबीले ने पहाड़ों को काटकर सीढ़ी नुमा खेत बनाए, जो आज 2000 एकड़ पर फैले हुए हैं। 2000 एकड़, ये बहुत वसी इलाका है। हाँ, गर्मियों में यहाँ का मौसम 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और हर खेत से 800 से 1200 पाउंड चावल की पैदावार होती है। इन सीढ़ी नुमा खेतों के काम करने का जो तरीक़ेकार है ना, वो इंतहाई साइंसी है। पहाड़ की ढलान पर जब बारिश होती है तो पानी तेजी से नीचे गिरता है और मिट्टी को बहा ले जाता है। लेकिन हमुंग कबीले ने पहाड़ को सीढ़ियों की शक्ल देकर पानी के बहाव को सुस्त कर दिया। अच्छा, तो इससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है? बिल्कुल, हर सीढ़ी एक प्याले की तरह काम करती है जो पानी को रोक लेती है, जिससे न सिर्फ मिट्टी का कटाव रुकता है बल्कि चावल की फसल को भी वाफिर मिकदार में पानी मिलता है। ये सदियों पुरानी पायदार ज़राअत यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक अजीम शान शाहकार है। यानी इंसान ने पहाड़ की ढलवान जैसी कमजोरी को एक ताकत में बदल दिया। ये इरादा इंसान को हर मुश्किल से लड़ना सिखाता है। अच्छा, अब इस तवील सफ़र के बाद आखिर में हम वापस श्रीलंका की तरफ लौटते हैं, जहां एक जदीद लेकिन इंतहाई बामानी मकाम मौजूद है, रोमसाला जापानी पीस पगोडा। ये अमन की एक बहुत खूबसूरत अलामत है। हाँ, ये 100 फुट बुलंद जदीद पगोडा 2009 में जापानी अवाम की तरफ से बनाया गया। इसे कदीम जापानी तर्ज तामीर और कुदरती मवाद का इस्तेमाल करते हुए एक पहाड़ी की चोटी पर तामीर किया गया है। अगर हम अपने आज के इस पूरे सफ़र का तसलसल देखें ना, तो हमने हज़ारों साल पुराने तारीख गारों से शुरुआत की थी, जहाँ इंसान छुप कर इल्म महफूज करता था, और हम ख़तरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरे, और आखिरकार हम इस जदीद दौर में एक खुली पहाड़ी की चोटी पर खड़े उस पीस पगोडा तक पहुँचे हैं जो अमन,
دوستی اور ثقافتی ہم آہنگی کا مجسمہ ہے۔ بالکل۔ یہ صرف ایک مذہبی مقام نہیں ہے بلکہ مقامی کمیونٹی کو جاپانی ثقافت سکھانے کا ایک زندہ مرکز بھی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ ہم نے آج ایشیا اور افریقہ کے 18 حیرت انگیز مقامات کا جائزہ لیا، چاہے وہ سری لنکا کے پرشور لکشاپانا جھرنے ہوں یا کلوڈیا پوکونا جیسی خانقاہیں، تنزانیہ کا منمبا جزیرہ اور فلپائن کے حیات سے بھرپور ساحل، چین کے گہرے زیجین غار اور بلند کارسٹ چوٹیاں، منگولیا کا اونگین گول دریا یا ویتنام کی بلند و بالا ما پیلینگ سڑکیں اور موکانگ چائی کے چاول کے کھیت، اور آخر میں پیس پگوڈا۔ یہ سب مقامات ایک ہی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسان اور فطرت کے درمیان موجود رشتہ مستقل کشمکش اور بقا کی ایک انتہائی خوبصورت داستان ہے۔ اور اس داستان پر غور کرتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ آج ہم نے ہزاروں سال پرانی خانقاہیں دیکھیں اور صحراؤں میں دفن قدیم تہذیبوں کے نشانات دیکھے جو آج بھی ہمیں حیران کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ہماری آج کی یہ جدید دنیا، یہ بڑے بڑے شہر اور یہ ساری ٹیکنالوجی اچانک غائب ہو جائیں تو آج سے 2000 سال بعد آنے والے محققین کے لیے ہمارے بنائے ہوئے کون سے ڈھانچے کالوڈیا پوکونا کے پتھروں یا اورخون کی تحریروں کی طرح حیرت کا باعث بنیں گے؟ یہ تو بہت سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہم اپنی موجودہ تہذیب میں واقعی ایسی کوئی تاریخ چھوڑ رہے ہیں جو وقت کی آندھیوں کا مقابلہ کر سکے، یا ہماری ساری تاریخ صرف سرورز اور کلاؤڈ پر ہی مٹ جائے گی؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اپنے پیچھے آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تاریخ واقعی صرف عجائب گھروں کے شیشوں کے پیچھے قید نہیں ہوتی، یہ ہمارے ارد گرد موجود ان اونچے پہاڑوں، گہرے غاروں اور بہتے پانیوں میں سانس لے رہی ہے۔ امید ہے آج کا یہ گہرا اور معلوماتی ڈیپ ڈائیو ہر اس شخص کے لیے یادگار رہے گا جو اس دنیا کی وسعتوں کو ایک نئے زاویے سے سمجھنا چاہتا ہے۔